में मेरठ जिले का मेवाना गांव स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। यहां लगे सीवीजी संयंत्र की उत्पादन क्षमता रोजाना 14.1 टन है। ये संयंत्र स्थानीय उद्यमियों अरुण जग्गी और ललित जग्गी की देन है। इसमें रोज 150 टन जैविक अपशिष्ट संसाधित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गन्ने का प्रेस मड़ और गाय का गोबर होता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले का मवाना गांव स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नया अध्याय लिख रहा है। यहां लगे सीबीजी संयंत्र की उत्पादन क्षमता रोजाना 14.1 टन है। ये संयंत्र स्थानीय उद्यमियों अरुण जग्गी और ललित जग्गी की देन है। इसमें रोजाना 150 टन जैविक अपशिष्ट संसाधित किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गन्ने का प्रेस मड और गाय का गोबर होते हैं। The procurement of raw material here happens from a sugar mill which is nearby. They have a byproduct which is called press mud. Press mud, if left on the ground, is not good for the environment. So for a long time there have been discussions on proper disposal of press mud, and then came the idea of generating compressed biogas. So we procure the press mud now directly from the sugar mills, so they don't have to really worry about its disposal. We procure it, we store it here, and we cover it. And then we dilute the press mud, mix it properly, and we feed it into the tanks where biogas is generated. That process is called anaerobic digestion. ये संयंत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम या SATAT के तहत लगाया गया है। इसमें बने गैस को खरीदने का करार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ है। Government support has always been there. I think the biggest support was the launch of the Satat scheme, as I said, because biogas has been a very raw and homely grown industry, and government has given it now an industry perspective. So a lot of people like us who wanted to invest into some new kind of industry have ample opportunities. As Amit ji said, that government has become the first buyer. So while setting up the industry, I don't have to worry about producing and then selling. I can concentrate 100% on production. I already have a buyer in place, and that buyer is not a small player. They are all Maharatan companies. So that is the biggest support that we have got. And secondly, the focus of the government is such that center and state are giving separate subsidies. Land is one subsidy which no government gives. UP government was kind enough to give us stamp duty exemptions, electricity duty exemptions. So once you achieve the right quality and right production, ample amount of subsidies are being offered, provided you have to, work hard to achieve them. यहां उत्पादित गैस को सिलेंडरों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नेटवर्क को भी सीधी आपूर्ति की जाती है। Once purification is done, we need to compress it and store it in cylinders so that they become feasible for transportation. Once it's transported, it could either be to a retail outlet or it could be a direct injection to the pipeline. So the whole crux of the process is that there is no press mud which is naturally getting fermented and adding to the the harmful effects to the ozone layer. It is all getting used up, and that's why these are called net zero plants. ये संयंत्र लगभग 50 टन लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद भी बनाता है। ये खाद पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने और फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए की जाती है। ये खाद फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए स्थानीय किसानों को मुफ्त बांटा जाता है। प्लांट को लग जाने से हमारी सारी समस्या हल हो गई है। हम गोबर इनको सेल कर सकते हैं। जो हमारा मैली है वो हम इधर आ रही है, जिससे सारी पब्लिक परेशान थी। इस प्लांट ने उसको लगाना है, मीथेन गैस CNG में कन्वर्ट करके गैस अपने काम में ले लेनी है, और जो इनका वेस्ट है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वो ये हमें दे रहे हैं। तो इस तरह के प्लांट मैं तो ये चाहूंगा कि हर 20 किलोमीटर पे लगने चाहिए, ताकि आसपास सबको लाभ मिले। और मैंने एक खेत में इस तरह भी, एक प्लॉट में इस तरह मैंने ये इनका जो वेस्ट मिल रहा है वो इस तरह मैंने डाल के देखा है कि 1 एकड़ में, आधे एकड़ में डाल दिया और आधे एकड़ में नहीं डाला। जिधर नहीं डाला है वहां पे मेरी 15% प्रोडक्शन कम आई है, जहां पे डाला है वहां पे 15% प्रोडक्शन ज्यादा आई है। पिछले साल हमने सरसों बोई तो 10 बीघे में 10 कुंटल निकली, इस बार 14 कुंटल निकली। इस बार 14 कुंटल निकली है। ये 14 कुंटल क्यों निकली, किस वजह से, क्या आपने
इस केमिकल को डालने की वजह से। हाँ, इसका ना कोई पैसा लेते हैं, ये कुछ नहीं, फ्री है बिल्कुल। सीएनजी के जो ये गैस प्लांट से हमारा जैविक खाद लेकर रहा है, इससे हमारी ज़मीन में कोई अच्छी पैदावार है, ज़मीन में केचुए की पैदावार बढ़ा रहा है, केचुए की फोक बढ़ा रहा है। जो हम डीएपी और यूरिया एक गट्टा लगा रहे थे, अब की बार आधा गट्टा लगा रहे हैं। पैदावारी में फर्क है, जो निकाल पिछली बार था उससे अब की बार ज़्यादा निकला है। तो इस चीज़ को खेत में डालने से कोई नुकसान नहीं है किसान का, क्यों हम अपने भी डालते हैं और किसानों के भी डाल रहे हैं। तो उससे मतलब आपकी उपज बढ़ी? जी हाँ जी, हमारी जो है 25% उपज बढ़ी है, कम से कम 25% उपज में हमें इस चीज़ का लाभ मिला। फिलहाल संयंत्र में रोजाना 6 टन गैस का उत्पादन होता है। इसके 2026 तक 22.5 टन तक बढ़ने की उम्मीद है। As we can see, the digesters is a very huge component. It is little tough to manufacture it. So we have made 2 digesters already in extra, which will take us to 22 tons. The current running digesters are already taking us to 14.6 tons. That investment we have already made. We are now trying to make another 5 to 7 crore rupees of investment in buying a new compressor just as a backup, improving the purification technologies. The pipeline is coming, so the pipeline may involve some kind of investments. And also we want to now slowly come up with a brand of FOM and LFOM that we produce, so that may require some more investment. गैस उत्पादन की योजना 2018 में शुरू हुई थी। इससे जैविक कचरे से स्वच्छ नवीकरणीय ईंधन बन रहा है। इस योजना के तहत देश भर में फिलहाल 106 संयंत्र चल रहे हैं और 82 नए संयंत्र बनाए जा रहे हैं।